جمع کیا ہے، اور میں اپنے سفر کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جو سلامتی سے ہوا، اور صبح سویرے خدا نے مجھے آپ کے شہر میں اتارا ہے، اور اس کا خاص مقصد ہے کہ ہم سب آج عید پینتیکوست کو خوب اچھے طریقے سے منائیں۔ سو آئے روح القدس آلریڈی یہاں پر موجود ہے، ہم زوردار تعلیموں سے پاک روح کو ویلکم کریں۔ خدا کے حضور میں خدا کے کلام میں سے بہت سارے حوالہ جات ہم نے دعا میں دہرائے ہیں، اور پاک روح جو ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، اور اس وقت پاک روح ہمارا استاد ہے جو ہمیں سکھاتا ہے اور بہتر طور سے رہنمائی کرتا ہے، بہتر طور سے ہمیں آگے بڑھاتا ہے، اور ہم اس پاک روح کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کلیسیا جو دنیا کے اندر مختلف ناموں سے پہچانی جاتی ہے، مختلف ناموں سے اسے لوگ یاد کرتے ہیں، اور لوگ اپنی کلیسیا کا نام لینا بڑا فخر کی بات سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں دنیا میں کلیسیا کا کوئی بھی نام ہو، کلیسیا در حقیقت پینتیکوسٹ جو بنی تھی وہ آج کے دن بنی تھی۔ ہلیلویا! آج کے دن عید پینتیکوست کے روز کلیسیا جو ہے وہ پینتیکوسٹ بن گئی، اور پوری دنیا کے اندر روح القدس نے جنبش کرنا شروع کی، اور پاک روح نازل ہوا، اور جب سے پاک روح نازل ہوا ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پینتیکوسٹ کب سے ہے، تو بائبل یہ کہتی ہے کہ پینتیکوست کے روز سے پینتیکوسٹ ہے۔ ہلیلویا! تو اگر پرانی کی بات کریں تو یہ پرانی کتاب 2000 سال پہلے جو لکھی گئی ہے یہ بتاتی ہے کہ پرانی کلیسیا پینتیکوسٹ کلیسیا ہے، وہ کلیسیا ہے جس پر روح نازل ہوا تھا، وہ کلیسیا ہے جس پر روح القدس نے آ کر جنبش کی تھی۔ آئیں جس طرح سے روح گائیڈ کرے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ میرے ساتھ مل کر نکالیے یوحنا کی انجیل اس کا دوسرا باب، یوحنا کی انجیل دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہوگا اور داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا، اس میں جانا آپ سب کے لیے درس سے کر دیجیے۔ آمین۔ خداوند کے کلام میں سے ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پڑھا ہے، اور یہ سچا واقعہ ہے، ایسا واقعہ جو آج سے 2000 سال پہلے جب یسوع جسم لے کر بدن لے کر اس دنیا میں آیا تو اس وقت یہ پیش آیا، اور یہاں پر لکھا ہے فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ کیا تھا؟ ایک سردار تھا۔ یاد رکھیے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں چرچز میں کونسلیں بنتی ہیں،
और हम देखते हैं जिस मुल्क में है वहाँ भी उलमा की कौंसलें बनती हैं। यहूदियों में कौंसल बनती थी और उसका नाम सेनहेड्रिन था। क्या नाम था? सेनहेड्रिन। उसके 70 मेंबर होते थे। कितने मेंबर? 70 मेंबर होते थे। और जो भी शरई मसला होता वो उनके सामने रखा जाता और वो तरेक में से पढ़कर उसका हल निकालते और फिर लोगों में वो बात जो है वो हल शुदा मसला फिर उसी तरह से तय पाता जैसे वो बुजुर्ग कहते। 70 लोग जमा होते। 70 का लफ्ज़ हम देखते हैं कि जब मूसा अपने मामला खुद ही निपटाता था तो उसके खुसर ने, उर्दू में कहेंगे सुसर ने, उसके सुसर ने उसे मशवरा दिया कि तू अकेला ही हलकान होता रहता है, ऐसा कर कि इनके मामलात निपटाने के लिए तू जमायत में से 70 लोगों को चुन ले और नेक नाम लोगों को चुन ले, ऐसे लोगों को चुन ले जो रिश्वत के दुश्मन हो और खुदा तरस हो। और मूसा ने 70 लोगों का चुनाव किया। तारीख में ये बात मिलती है कि उसने 70 लोग अपने साथ चुने जो फिर यहूदियों के मामलात जो है वो देखते थे। तो उसी तस्वीर को लेकर, उसी खाके को लेकर यहूदियों में हर वक्त कोई ना कोई 70 का एक फ़िरका, जमात, अदारा मौजूद होता जो मामलात को हल करता। तो ये शख्स जो निकोदेमस है ये उस वक़्त की सेनहेड्रिन का मेंबर था और छोटी बात नहीं, शरई आलम था और फिर शरा पढ़ने वाला, शरा सुनाने वाला, तालीम देने वाला। लेकिन उसे ज़रूरत महसूस हुई कि वो हमारे यीशु से सीखे। हालेलुया। और याद रखें दुनिया में सारे उस्ताद एक तरफ, यीशु एक तरफ। वो अकेला ही हज़ारों पर मुमताज़ है, बल्कि करोड़ों पर, अरबों पर मुमताज़ है। और उसकी शख्सियत जो है वो हम अगर उसकी फजीलत बयान करना शुरू करें तो उसके लिए भी बहुत सारे वक्त चाहिए, बहुत सारे घंटे चाहिए। तो पौलुस रसूल ने कहा कि तुम जो मूसा को अपना लीडर मानते हो, उसे बड़ा समझते हो, याद रखो मूसा खुदा के घर में खादम है। खादम क्या होता है? नौकर है। लेकिन हमारा यीशु क्या है? वो बेटा है और मुख्तार है। तो निकोदेमस जो यहूदियों का सरदार है उसने रात को यीशु के पास आकर उससे सवाल किया, आखिर रात ही को क्यों आया? इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो शायद दिन के वक्त उसके पास टाइम ना हो, बिजी शख्स हो। दूसरा ये कहा जाता है कि उसे अपने दूसरे यहूदी दोस्तों का खौफ था कि कहीं वो ये ना समझ ले कि ये क्यों इस उस्ताद के पास जाता है। तो रात के अंधेरे में वो गया और जाकर यीशु को पुकारता है कि ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से होकर आया है। और क्या होकर आया? उस्ताद होकर आया। और साथ उसने वजह बताई कि तू उस्ताद क्यों है, तू रब्बी क्यों है। क्योंकि जो मुझसे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता उस वक्त तक जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो गोया उसका पहला इकरार हमें इस प्यारे के अंदर ये मिलता है कि वो इस बात को कबूल करता है कि यीशु के साथ खुदा है। आमीन। अगरचे यीशु का नाम मुकाशवाती नाम, नबूवती नाम इमानुएल है, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। और वो उस इमानुएल को कह रहा है, उस यीशु को जिसका मानी है निजात देने वाला, उस लीडर को जो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, कह रहा है कि मैं इकरार करता हूँ कि बाप तेरे साथ है, खुदा तेरे साथ है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बात से को देख नहीं सकता। अब देखें, वो इस बात को थोड़ा सा पेश कर रहा है कि मैं खुदा को भी जानता हूँ और तुझे भी जान गया हूँ कि खुदा तेरे क्या है जी, साथ है। और यीशु ने उसे इससे भी अगली बात सुनाई कि जिस खुदा की तू बात करता है उसकी एक बादशाही है। और मेरी, अपने बारे में वो कह रहा, मेरी जो मैं खुदा का बेटा होकर आया हूँ, मैं उस बादशाह का मुख्तार हूँ। तो सुन, हम बादशाह को और बादशाह के बेटे को
उस वक्त तक देख नहीं सकते, उसकी बादशाही को उस वक्त तक देख नहीं सकते जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। नया सिरा, पुराने सिरे बड़े हैं लेकिन नया सिरा पकड़ना होगा। दुनिया के अंदर लोग हलाक हो रहे हैं पुराने सिरे पकड़कर, पुरानी बातें पकड़कर, पुरानी तालीमात पकड़कर, पुराने रहनुमाओं को लेकर। जरूरत है कि उनको छोड़ कर क्या करें जी, वो सीधे रास्ते को पकड़ लें। जरूरी है कि वो इस नए सिरे को पकड़ लें। लिखा है नए सिरे से जब तक वो पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो। किस से पैदा ना हो जी? पानी से पैदा ना हो, रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो नहीं सकता। और ये भेद खुदावंद ने खुद उस शरअ के आलम के सामने खोला कि पानी से पैदा होना जरूर है, रूह से पैदा होना जरूर है। अब हम गौर करते हैं कलाम मुकद्दस में 2 बपतिस्मे हैं। कितने बपतिस्मे? 2, एक पानी का और एक रूह का। ये भी वही हवाला है। यीशु ने कहा जब तक कोई पानी से पैदा ना हो, मतलब है जब तक कोई पानी का बपतिस्मा नहीं लेता और फिर उसके बाद रूह का बपतिस्मा नहीं लेता, वो कभी खुदा की बादशाही में दाखिल हो नहीं सकता। और ये दोनों बपतिस्मे लेना जरूरी है। यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, वो तुम्हें क्या करेगा? रूह और आग से बपतिस्मा देगा। गौर से सुनने की जरूरत है कि पानी से बपतिस्मा कौन देता है? यूहन्ना देता है। और क्या वो वहां पर बंद हो गया? नहीं। यही यूहन्ना की इंजील हमें बताती है कि यीशु आप बपतिस्मा नहीं देता था, लेकिन उसके शागिर्द क्या देते थे? बपतिस्मा देते। और कहां देते थे? जहां पानी बहुत था। तो पानी का बपतिस्मा हम सब इस बात से वाकिफ है कि उस जगह दिया जाता है, लिया जाता है जहां पर पानी क्या होता है? बहुत होता है। और ये पानी का बपतिस्मा जो हम आज कलीसियाएं देती हैं या कलीसिया लेती है, कलीसिया में शामिल होने के लिए लोग लेते हैं, ये कोई यूहन्ना का बपतिस्मा थोड़ी है। ये बपतिस्मा वही है जो यीशु निकोदेमस से कह रहा है कि जब तक कोई पानी से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। अब सवाल पैदा होता है पानी का बपतिस्मा लोग क्यों लेते हैं? और अक्सर ये कहा जाता है कि अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए, पतरस ने ऐलान किया, अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए तुम यीशु मसीह के नाम पर क्या लो? बपतिस्मा लो। तो हम जवाब यही देते हैं कि गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा है, लेकिन एक दूसरी वजह भी है। सवाल है कि यीशु ने क्या गुनाह किया था जो उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया? जवाब है कि यीशु तो वो है जिसने अदालत में खड़े होकर कहा कि तुम्हें कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? और दुनिया का कोई फरिश्ता, ना कोई इंसान, ना कोई आलम, ना कोई मुअल्लम, ना कोई बड़ा ओहदा रखने वाला, कोई उसमें गुनाह साबित नहीं कर सकता। और ना हुआ है, तारीख गवाह है कि यीशु बेगुनाह आया था और बेगुनाह ही वापस लौट गया। हालेलुया। तो उसने क्यों बपतिस्मा लिया? भाई यही तो वजह थी, क्योंकि यूहन्ना गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा देने आया था। और इसलिए उसने उस दौर के लोगों में बड़े वसूख के साथ मनादी की, दलेरी के साथ मनादी की। और उसने यहां तक फरीसियों को कहा कि आसाम के बच्चों, तुम जो सिर्फ रस्म पूरी करने आ गए हो और दिल नहीं बदले, पहले जाओ अपने दिल बदल के आओ, फिर बपतिस्मा लो। फिर उसने ये भी ऐलान किया कि तुम जो अपने आप को दीनदार समझते हो, रास्तबाज समझते हो, तुमसे पहले कस्बियां जो है वो आसमान की बादशाही की क्या बन जाएगी? वारिस बन जाएगी, क्योंकि वो अपने गुनाहों पर रोती हैं, मातम करती हैं। लेकिन तुम जो अपने आप को रास्तबाज कहते हो, फरीसियों का बड़ा टोला था जिसका मेंबर निकोदेमस भी था, वो अपने आप को बड़ा रास्तबाज समझते थे। लेकिन क्या है, वो अंदर खाते रियाकारी करते थे। और याद रखे, रियाकारी से बड़ा गुनाह कोई भी नहीं कि बंदा हो कुछ
और दिखाई कुछ होने की कोशिश करे। गोया वो ड्रामा तो कर सकता है, लेकिन खुदा दिलों को जानता है, गुर्दों को जानता है। तो यूहन्ना का बपतिस्मा समझा ये जाता था कि वो गुनाहों की माफ़ी के लिए है, और पतरस ने भी कुछ ऐसा ही ऐलान किया, इसलिए डाउटफुल रहा। और लोग समझते हैं कि मसीही बपतिस्मा भी जो है वो गुनाहों की माफ़ी के लिए है, पानी का बपतिस्मा भी गुनाहों की माफ़ी के लिए है। लेकिन यीशु ने उस वक्त जब यूहन्ना कहता है मैं, वो कह रहा है कि मैं तो गुनाहगार हूँ, तू रास्तबाज है, मैं तुझसे आप बपतिस्मा लेने का क्या हूँ जी, मोहताज हूँ। लेकिन यीशु ने कहा सुन, तू अपने बपतिस्मे की डॉक्ट्राइन को थोड़ा चेंज कर, अपने इल्म को थोड़ा बढ़ा। क्या बढ़ा? कि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को क्या करना, पूरा करना है। चाहे किसी ने गुनाह किया है या नहीं किया, चाहे वो रास्तबाज है या नहीं है, सबको क्या लेना होगा, पानी का बपतिस्मा लेना। और सारी कलीसिया के लिए, नाम कोई भी हो, सबको पानी का क्या लेना होगा, बपतिस्मा लेना होगा। मेरी बेटी ने अपने दादा को एग्री कर लिया, राजी कर लिया, और सिर्फ एक जुमला बोला। उसने कहा दादा क्या आप यीशु से बड़े हो? उसने कहा नहीं बेटा, यीशु बड़ा है। 2-3 बार उस बच्ची ने, जो 7-8 साल की बच्ची थी, उसने दोहराया अपने दादे के सामने इस सवाल को। और जब दादा पक्का हो गया कि नहीं मैं यीशु से छोटा हूँ, तो उसने एक जुमला और कहा, और वो कहा क्या कि अगर यीशु ने बपतिस्मा लिया तो फिर आप भी लें। और मेरे अब्बू ने उसी शाम आकर जब वो मालकी से गए थे लौटे, तो मुझे कहा जी बस पादरी साहब मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। तो मैंने, क्योंकि मेरे अब्बू एक ऐसी कलीसिया के मेंबर थे जो पानी के बपतिस्मे के खिलाफ, वो एल्डर रहे, बड़े पक्के एल्डर, और तालीम देते रहे पानी के खिलाफ, बपतिस्मे के खिलाफ। और क्या हुआ जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा खैर हो गए। कहते बस बेटा मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे, और मुझे इंतहाई खुशी हुई मेरे बाप ने जब मुझसे बपतिस्मा लिया। और मैं समझता हूँ कि रिश्ता कोई भी हो, सबको पानी का क्या लेना है जी, बपतिस्मा। तो आज इस ईद पेंटिकोस्ट के मौका पर मैं ये कहूँगा, मसीहत के अंदर 2 बपतिस्मे हैं। कितने बपतिस्मे? एक पानी का और दूसरा क्या जी, रूह का। और आपने क्या सुना आज? यीशु ने निकोदेमुस से कहा जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और साथ ही ऐलान किया जो जिस्म से पैदा हुआ है क्या है, जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ क्या है। तो रूह से पैदा होने के बाद ही हम रूह बन सकते हैं। याद रखें ये जिस्म जो है ये इसी दुनिया में रहने वाला है, लेकिन आसमान पर जाने वाली कौन है? रूह है। हमें आसमान पर लेकर जाने वाली कौन है? रूह है। जब तक हम रूहानी नहीं बनेंगे, जब तक हम रूह से पैदा नहीं होंगे, उस वक्त तक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और मैं ये कहूँगा सारी दुनिया में इस मुनादी की जरूरत है कि भले आप उसी कलीसिया में रहो, लेकिन कलाम को जानो। कलाम क्या कहता है कि रूह से पैदा होना क्या है जी, बड़ा जरूरी है। फिर इस हवाले के अंदर हम देखते हैं कि ताज्जुब न कर, 7वीं आयत है, ताज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। ताज्जुब न कर से मुराद है हैरान ना हो। कुछ लोग हैं इस तालीम से बड़े हैरान होते हैं, लो जी नवी मिशन आ गई। लेकिन मैं फिर कहूँगा मिशनें नहीं हो सकती हैं, नाम नहीं हो सकते हैं, लेकिन बाइबल कभी नहीं। अगरचे इसके अंदर नया ड्रामा भी है, लेकिन ये सबसे पुरानी किताब है, दुनिया की सबसे पुरानी किताब, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। और दुनिया के अंदर मुखालफीन भी इसे पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं, उनके हालात बदल जाते हैं। इसलिए ये किताब जो कुछ कह रही है इस पर गौर करने की जरूरत है। पानी से और रूह से पैदा होना जरूरी है, क्योंकि जो रूह से पैदा नहीं होता वो कभी रूह बन नहीं सकती, वो फिर बदरू ही रहेगा। क्या रहेगा जी? बदरू। याद रखें इस बदन को इस्तेमाल करता है खुदा, और इसी बदन को इस्तेमाल करता है शैतान। कौन कौन जी बोले? इधर देखें।
देखिए, दुनिया में काम करने के लिए शैतान को भी बदन चाहिए और खुदा को भी क्या चाहिए? बदन चाहिए। यूहन्ना ने क्या कहा था? यूहन्ना ने कहा खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा है जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया। उसने अपने आप को जाहिर करने के लिए क्या किया? उस बदन को पहना जिसका नाम यीशु रखा गया, और उसके अंदर उसने डेरा लगाया, खेमा लगाया, सुकूनत की, ताकि दुनिया उसको देख सके और वो दुनिया को करीब से देख सके। और इसलिए यीशु ने कहा था, जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा जी? बाप। इसी तरह से आज दुनिया पर जाहिर होने के लिए उसको मेरा बदन चाहिए, उसको आपका बदन चाहिए, उसको आपका बदन चाहिए, उसको आपका बदन चाहिए। और जब तक हम अपना बदन नहीं पेश करेंगे, उस वक्त तक खुदा कभी भी अपने रूह को हमारे अंदर डाल नहीं सकता। इजाजत हमने देनी है। जैसे यीशु के आने के लिए लिखा ना, वो दरवाजे पर खड़ा हुआ क्या करता है? खटखटाता है, जो खोलेगा अंदर आकर खाना खाएगा। इसी तरह से रूह कुदस भी है। जहां एक सवाल है, रूह कैसे मिलता है? बड़ी मिशनें ऐसी भी याद हो गई हैं जो कहते हैं आओ जी तुहानू रूह दईए। याद रखें, कोई शख्स रूह दे। यूहन्ना ने क्या मुनादी की थी? मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो देगा। और यूहन्ना की इंजील 14, 15, 16 बाब जब हम पढ़ते हैं तो उसने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, मैं जाऊंगा और बाप से रूहे हक लेकर तुम्हें दूंगा। फिर उसने ये भी कहा कि मैं बाप से लेकर तुम्हें दूंगा, क्योंकि जो मेरे पास है वो बाप ही की तरफ से है। और हम गीत गाते हैं, जब ईस्टर की सुबह होती है तो एक गीत गाते हैं और हम सब मिलकर गाते हैं। आए मेरे साथ मिलकर जरा गाएं। उत्ते जाके वादा अपना ना भूलिया, बोले उत्ते जाके वादा अपना ना भूलिया। फिर कहेंगे उत्ते जाके वादा अपना ना भूलिया, बाप को लेके रूहे पाक चलिया। किसे? बाप को लेके रूहे पाक चलिया। आमीन। ये हर ईस्टर पर हम दोहराते हैं और फिर लोगों के चंगल में फंस जाते हैं। कोई आके कहता जी आओ तो रूह दईए, जैसे वो मगर करते हैं। दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं जो हमारी आंखों को बंद कर देते हैं, हमारे ज़हनों को बंद कर देते हैं, लेकिन कलाम की यही सच्ची तालीम है कि रूह को इंसान नहीं देता, यीशु देता है। आमीन। कोई पादरी नहीं देता, यीशु देता है। कोई बिशप नहीं देता, कौन देता है जी? यीशु देता है। और ना ही कोई पोप देता है, कौन देता है? यीशु। कोई भी टाइटल हो, ना कोई एल्डर देता है, ना कोई साधु देता है, ना कोई फादर देता है, सिर्फ यीशु वो देता है। क्योंकि उसने वादा किया कि मैं जाता हूं और जाकर बाप से रूहे पाक लेकर तुम्हें दूंगा और वो तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन लोग दुनिया के अंदर क्या करते हैं? जिन्हें लाया गली, बोले बोले, जिन्हें लाया गली। हाँ, इसलिए हमें पौलुस ने कहा था वक्त के लिहाज से तुम्हें क्या होना चाहिए था? उस्ताद होना चाहिए था। यूहन्ना ने, मैं फिर दोहराता हूं, यूहन्ना ने कहा था मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह और आग से क्या देगा? बपतिस्मा देगा। तो रूह से बपतिस्मा देने वाला कौन है? बोले बोले नाश्ता किया ना? जो नहीं किया तो फिर मेरा कसूर तो नहीं ना। हम देखिए एक दूसरे के साथ जब बातें करेंगे तो हम ज्यादा सीख पाएंगे। तो रूह से बपतिस्मा कौन देता है जी? यीशु देता है। और इस बात को पल्ले बांध लें, इस तालीम को इसराइल को हुक्म दिया था कि तुमने माथे के टीकों की तरह इस तालीम को रखना है, जो तालीम उसको कर दी गई। उसने कहा ये तुम्हारी कलाइयों पर ऐसे हो जैसे तवीज़ बांधे गए हैं, बाजुओं पर ऐसे जैसे तवीज़। लेकिन लोग तवीज़ ही बांधे ने, तालीम नहीं बांधे।
वो तावीज़ बंद होते थे, अब खुली तालीम की बात है, अब ज़हनों के खुलने की बात है। तो रूह का बपतिस्मा कौन देता है? यीशु देता है। फिर कैसे देता है? कैसे? सवाल है कैसे रूह का बपतिस्मा मैं पाना चाहती हूँ, मैं पाना चाहता हूँ, कैसे मिलेगा मुझे पाक रूह का बपतिस्मा? क्या मैं ज़्यादा डांस करूँ फिर मिलेगा, कि मैं बहुत हिला? फिर एक बहन थी, वो इबादत में जब आती दुआ शुरू करती, मैंने एक दिन उसके दुआ में बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा क्या कर रही हो? कहते वो ना बस मुझे किसी ने कहा था कि बामा शामा हलाएंगी ना तो रूह हाल हो जाएगी। इब्तिदा में खुदा की रूह पानी की सतह पर किसे बामा हलाइया? क्यों जी? किसे बामा हलाइया? रूह तो पानियों पर जुम्बिश करता है, और जिसे चाहता है देता है। यानी कि जरा बहुत या बामा हलाएगा, बहुता डांस करेगा, बहुता फुड़केगा, ऊंची ऊंची बोलेगा तो ओनू बहुता मिल जाएगा, तो जरा हौली हौली दुआ करेगा ओनू थोड़ा। लिखा है रूह नापना कर नहीं मिलता। रूह एक शख्सियत है और पूरे का पूरा मिलता है। जो मांगता है उसे पूरा मिलता है। वो उतना ही पादरी को मिलता है, उतना ही कलीसिया को मिलता है। मिलता कैसे है? अभी पादरी साहब दोहरा रहे थे उस हवाले को कि यीशु ने एक मौका पर कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या तुम्हारे मांगने पर तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूह ना देगा? जब तुम बुरे होकर तुम्हारा बेटा जो है वो अंडा मांगे तो तुम उसे कुछ और दूसरी चीज नहीं देते, मछली मांगे तो कोई और चीज नहीं देते, तो बुरी चीज नहीं देते, तो तुम्हारा बाप क्या तुम्हें अच्छी चीज ना देगा? जरूर देगा। मांगोगे तो खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। तो कैसे मिलता है जी रूह? मांगने से, दुआ करने से। पहली कलीसिया जो बाला खाना पर थी उसको कैसे रूह मिला? दुआ से। क्या वो बाला खाना पर एक दिल होकर दुआ कर रहे थे, एक जान होकर दुआ कर रहे थे, तो एक मिनट की दुआ नहीं कर रहे। 10 दिन, कितने दिन? 10 दिन उन्होंने दुआ की, फिर जाकर रूह कुदस आसमान से आया और आकर उन पर आकर ठहर गया। और फिर खाली ठहरा नहीं बल्कि उन्होंने देखा। क्या देखा? आग के शोला की फटती हुई जुबानें देखी, और फिर और भी सुना भी। क्या? जोर की आंधी का सन्नाटा सुना। वो रूह आया, जोर से आया, आग की सूरत में आया, जुबानों की सूरत में आया। और जब आया है तो एक ही तरीका था कि वो बाला खाना पर क्या कर रहे थे? तो जो मांगेगा उसे क्या होगा? तो जरा मंगेगा नहीं, एक कहेगा नहीं नहीं ए रूह ते भाइयों दा ते मैं ते कैथलिक हाँ, ए रूह ते भाइयों दा मैं ते यूपी हाँ, ए रूह ते भाइयों दा मैं ते प्रेसबिटेरियन हाँ, ए रूह ते भाइयों दा ते मैं बैप्टिस्ट हाँ। रूह सब के लिए, हालेलुया। जैसे बेटा सब के लिए ना, सारी दुनिया के लिए बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर क्या लाए थी हलाक न बल्कि हमेशा की। ऐसे ही रूह कुदस सब के लिए है। जो ईमान लाएगा, ईमान से दुआ करेगा, उसको रूह कुदस मिल ही जाएगा। आमीन। अमाल की पूरी किताब पढ़ के देख लें, गैर कौमों ने रूह पाया, यहूदियों ने रूह पाया, यीशु के शिगिर्दों ने रूह पाया। तो जब यीशु के शिगिर्दों को मिला है, मकसद एक ही है कि वो यीशु की क्या दें जी? वही। जब यहूदियों को मिला तो मकसद एक ही था कि वो भी किसकी गवाही दे? यीशु की गवाही। जब गैर कौमों को मिला तो मकसद फिर भी यही था कि वो यीशु की क्या दें जी? तो रूह मिलता है दुआ से। उसका मकसद है सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं गैर जुबानी बोलूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उल्टी सीधी हरकतें करूं और दूसरों में नुमाया नजर आने की कोशिश करूं, मैं हीरो बनने की कोशिश करूं।
बल्कि इसलिए है कि यीशु का काम था। आमीन। अमाल की किताब निकालें मेरे साथ मिलकर। अमाल की किताब उसका पहला बाब, पहली आयत से पढ़ूंगा। एथिफलस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, क्या खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा कि उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगी। कलाम को जिसका पढ़ा और सुना जाना आप सबों के लिए वैसे। तो यहाँ पर खुदा का बंदा लूका इस बात को लिखता है अपने प्यारे शिगिर्द थिफलस से कि मैंने पहला रिसाला, पहला पैगाम उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया, लिखा जो यीशु शुरू से करता है। तो वो बात करता है लूका की इंजील में कि मैंने वो इंजील इसलिए लिखी ताकि यीशु के काम बता दूं। काम क्या थे? उसने मुर्दों तक को जिंदा किया। काम क्या थे? उसने कोड़ियों को पाक साफ किया। सबका जिक्र उसने लूका की इंजील में किया। और अगली आयत में वो कहता है कि वो रसूलों को जिन्हें उसने चुना था उनको दिखाई देता रहा, उनसे मिलता रहा और मिलकर बहुत से सबूत उसने फराहम किए। 40 दिन तक नजर आता रहा और उठाए जाने से पहले उसने उनको मिलकर कहा, यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। फिर वो उन 2 बपतिस्मों की बात करता है जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। और उसने जब हुक्म दिया कि आपने बाहर नहीं जाना, तो हुक्म का मतलब हुक्म है। शिगिर्दों ने हुक्म को हुक्म के तौर पर लिया। और याद रखें, रूह को पाने के बाद बारे में हुक्म है, मशवरा नहीं है कि कोई मन्ने तो पावे। हुक्म है कि आपने कुव्वत लेनी है। क्या लेनी है? कुव्वत। सिर्फ ईद पेंतिकोस्त नहीं मनानी, बल्कि कुव्वत लेनी है। और जब तक कुव्वत ना मिले तुमने नहीं जाना कहीं। आज क्या हो रहा है? लोग जाना तो चाहते हैं लेकिन कुव्वत लेना नहीं चाहते। कुव्वत लेना जरूरी है। कुव्वत कहाँ से मिलती है? कुव्वत खुदा के कदमों में मिलती है। कुव्वत खुदा की हुजूरी में मिलती है। कुव्वत, कौन सी कुव्वत की बात हो रही है? ऐसी कुव्वत जिसके बारे में हमने यूहन्ना की इंजील 2 बाब में पढ़ा कि वो बात करता है कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल। तो ऐसी कुव्वत जो हमें बादशाही में दाखिल कर दे, ऐसी ताकत जो हमें आसमान की बादशाही का हिस्सा बना दे, वो ताकत चाहिए, वो कुव्वत चाहिए। और ये कुव्वत लेने के लिए शिगिर्दों ने पैरवी की, शिगिर्द ठहर गए। और साथ साथ एक और बात गौर से सुनिएगा,
जब वो बात कर रहा है बादशाही की, तो वो भी इस बात का सवाल करते हैं, खुदावन जब रूह आ जाएगा तो क्या तू उसी वक्त हमें बादशाही दे देगा या इसराइल को बादशाही मिल जाएगी? आज कई लोग ने रूह इसलिए मांगते हैं ताकि बादशाह बन, क्या बन गए भाई? बादशाह नहीं। अगर आप गौर करें, यसु पैदा रूह की कुदरत से हुआ और जब वो जवान हुआ हैकल में दाखिल होकर कहता है कि खुदावन का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे भेजा है। वो महसूस करता है कि खुदा का रूह मुझ पर है, लेकिन उसे ज़िंदगी कैसी गुजारी? गौर करें, अगर जो बादशाहों का बादशाह था, बादशाही का मालिक था, लेकिन ज़िंदगी कैसी गुजारी? सवारी किस पर करता है? गधे पर। रहता कहाँ है? उस वक़्त के कहने माड़े मोटे मकान में, यरूशलेम की गलियों में पला बड़ा है। रूह उसके पास है, बपतिस्मा लेकर अभी पानी से बाहर नहीं आया कि रूह ऊपर से कबूतर की सूरत में आता है और आकर उस पर ठहर गया है, लेकिन निकला है ऐसे लगता है जैसे कोई फकीर है, ऐसे लगता है कि इस जैसा हलीम बंदा ही कोई नहीं। और ये सवाल करते हैं, लिखा है पास 6 आयत में, पास उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, क्या खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे क्या कहा? उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। तुसी बादशाही खेड़ते हो, बादशाही ने सवाल करते हो, ये तुम्हारा काम ही नहीं है। अगरचे वो राइट पर थे, क्योंकि यीशु ने जब से मनाती करना शुरू की, उसने ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि बादशाही करीब है। ऐलान करना शुरू कर दिया कि मेरा बाप बादशाह है, और मिसालें दी, तमसीलें दी कि बादशाह ने क्या किया, नौकरों को भेजा, लोगों ने मारा कूटा, आखिर में बेटे को भेजा तो लोगों ने कहा यही वारस है, इसे मार दो। तो लोग समझ रहे थे कि बादशाही की बातें करता है तो ये बादशाही जरूर ले लेगा। तो यीशु ने जब रूह के बपतिस्मा की बात की तो वो समझ रहे थे बादशाही लौट आएगी। यीशु ने कहा उस बादशाही के बारे में जानना तुम्हारा काम नहीं है। उसकी बातें करना छोड़कर क्या करो, तुम ठहर जाओ, तुम रुक जाओ, और क्या है, तुम कुव्वत पाओ। जो काम है ना वो क्या है, तुम्हारा काम है दुआ में। यीशु उनको इस मकाम तक लेकर आना चाहते हैं। आज किसी ने फड़ के दुआ चुका, ये लोग इधर ना जाना है, फिर उधर फड़ के ले इधर दुआ कर, वो इधर ना जाना है। और मैं कहूँगा अगर कलीसिया दुआ करने वाली बन जाए तो दुनिया का कोई काम नामुमकिन। क्यों? इसलिए कि उनको रूह मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? और मिला जैसे इनको 10 दिन बाद रूह मिला, और रूह जब आया है तो इस रूह ने अपना काम दिखाया। लोगों ने जुबानें जो आई थी, अब जुबानें इन पर उतर गई हैं, तो इन्होंने बोलना शुरू कर दी। और देखें, ये वो बात है कि पुराने अहदनामा के अंदर एक पेशेंट गोई थी क्या, कि एक वक्त आएगा कि बोली एक होगी। बोली कितनी होगी? एक होगी। और याद रखें, जब बोलियां एक होती है ना तो फिर दिल भी एक होता है। रूह कुद्दुस असल में हमें यूनाइट करने आया, एक बोली बोलने के लिए उसने दिया। और पुराने अहदनामे में हम देखते हैं जब लोगों ने बुर्ज बनाया बाबल का, तो बोलियां फर्क हो गई, और नतीजा क्या निकला कि आदमियों का मंसूबा नाकाम हो गया। जो बुर्ज बनाना चाहते थे वो मंसूबा फेल हो गया। लेकिन ये बोली एक दी गई है ताकि लोग बुर्ज से भी ऊपर जा सकें। हालेलुया। उस बुर्ज से भी ऊपर की सोच रखें। बाबल का बुर्ज आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल बना हुआ है, और मैं कहूँगा उस मिसाल से बेमिसाल बात यह है कि रूह कुद्दुस
हालेलुया। तो ये रूह इसलिए आया है ताकि तफरके ना हो, ये नहीं कि कोई एक मांग रहा था तो गारा पाए। ये रूह इसलिए आया है कि कोई एक मांगे ना तो एक दी दी जाए, कोई गारा मांगता है उसको गारा दिया जाए। ये रूह इसलिए आया है ताकि फिर से लोग एक ही जुबान हो जाए, समझ आए। लेकिन हुआ क्या, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, जब रूह नाज़िल हुआ तो लोग हैरान थे। 5 ऐसे पढ़ूंगा, दूसरे बाब की 5 है भाई महमूद पढ़ना जरा। कमाल दूसरा बाब 5 है। आज 5 में से और हर कौम में से जो आसमान के तले हैं खुदा दस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई। जब ये आवाज आई तो क्या लग गई जी? भीड़ लग गई। और लोग और सुनिए गौर से, और लोग आप सुनिए गौर से, आज जब आप देख रहे हैं कि हम इस चर्च के अंदर थोड़े से लोग हैं, जब रूह नाज़िल होगा तब भीड़ आप भी लग गई। हालेलुया। इसलिए मैं इस मुकाम तक आपको लेकर आना चाहता हूँ कि आप उस रूह को मांगे जो भीड़ लगाता है, जो एक चर्च से दूसरा बनाता है, जो दूसरे से तीसरा बनाता है, जो तीसरे से चौथा बनाता है, और चौथे से 5वां चर्च बन जाता है, फिर 6ठा चर्च बन जाता है, फिर 7वां चर्च बन जाता है, फिर 10वां चर्च बन जाता है। करते करते क्या होता है कि 500 लोग जो हैं वो एक ही जमात के लीडर बनकर मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मुनादी करते हैं, और उनका दिल एक होता है, रोया एक होती है, ख्याल एक होता है। भीड़ लग गई जब उस जगह पर रूह कुदस नाज़िल हुआ, और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी बोली बोल रहे हैं। ये लिखा है ना, यही बोला आपने, जितना के पास बाइबल है यही लिखा है ना कि हर एक को। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि हर एक में कुछ लोग फिर भी कुछ ना कुछ कड़वी जड़े हैं। देखें बड़े तरह आगे सब हैरान और मुतज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पारथी और मादी और एलामी और मसबूतामिया और यहूदिया और कप्तूकिया और पैंतुस और आसिया और फ्रोगिया और पंफलिया और मिस्र और लिबुआ के इलाके के रहने वाले तकरीबन 12 कौमें थी वहाँ पर। कितनी? तकरीबन 12 कौमें थी, लेकिन सब कह रहे हैं ये हमारी बोली। मतलब क्या है कि लबनानियों को लबनानी समझ आ रही है, जो लबनानी बोली है वाले हैं उनको लबनानी समझ आ रही है, जो मादी बोली बोलते हैं फारसी लोग उनको वही समझ आ रही है, जो इलामी हैं उनको वही, और जो एशिया के लोग हैं उनको वही बोली समझ आ रही है जो वो बोलते हैं। रूह ने बोली दी है, गैर जुबानें नाज़िल हुई, पर सुनने वालों को ऐसे आज के दौर में ऐसा है, कॉन्फ्रेंस होती है ना तो डेस्कों पर क्या होता है, हेडफोन लगे होते हैं और बोलने वाला अपनी जुबान में बोल रहा है, लेकिन सुनने वालों को जदीद सिस्टम आ गया है। सुनने वाले को वहाँ पंजाबी बैठो उन्हें पंजाबी समझ को बटन दबाता है, पंजाबी में समझ आता है, अंग्रेज़ी वाले को अंग्रेज़ी में समझ आता है। इस तरह से इल्म ने इतनी तरक्की कर ली है। लेकिन देखें उस वक्त कोई वखरा सिस्टम नहीं सी, लेकिन खुदा ने बटन ऑन कर दिया। हर शख्स का वही बटन ऑन है जो उसको समझ आ रहा है। बोली आई है
और तकरीबन 12 मुल्कों के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने सुना, आगे सुने। जो गिरने की तरफ है और रोमी मुसाफिर ख्वा यहूदी ख्वा उनके मरीद और करीबी और अरब हैं, मगर अपनी अपनी ज़बान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते देखिए हैं। अरबी भी वहाँ थे, क्रेती और अरब के लोग वहाँ पर मौजूद थे। और गिन के अगर हम देखें तो ये 12 से 16 मुल्क बनते हैं। तो 12 से 16 मुल्कों के लोगों ने अपनी अपनी बोली में सुना। क्योंकि बोली किसकी थी? बोली किसकी थी? रूह कुदस की। बोली रूह की थी। तो ਜਦੋਂ रूह की बोली बोलिए ना तो फिर जाने में समझ आती है। बेटा समझ आ रही है? फिर सबको समझ आती है। और रूह की बोली बगैर रूह के कोई बोल नहीं सकता। काश के हम कहते हैं कई बार तेरी मेरी जुबान समझ नहीं आती तो किवें आए, क्योंकि तेरे अंदर रूह, जिसमें रूह आ जाता है वो फिर रूह की बोली बोलता है। आगे सुनो, ये तो एक तस्वीर है। अगली तरफ जाते हैं। मगर अपनी अपनी ज़बान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? और ये सारे कह रहे हैं ये क्या हुआ चाहता है, ये क्या हुआ चाहता है। कि ये बोली जो बोल रहे हैं हमारी ही बोली है, हालांकि ये गलीली लोग हैं। इन्हें किदों सीखी लबनानी, इन्हें किदों सीखी अरबी। हैरान हो रहे हैं। और इस हैरानी के आलम में वो खुश भी हो रहे होंगे कि ये कैसा माजरा है। एक फिर दूसरा ग्रुप भी है, बड़े गरम। और बास ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मैं के नशा में। हाँ, उन्होंने विचों भी एक ग्रुप ऐसा सी कि जिन्हों समझ नहीं आ रही, जिसको समझ नहीं आ रही, बास ठट्ठा करे। अगर समझ आती होती तो खाली हैरान ही होते पहले ग्रुप की तरह। लेकिन ये ठट्ठा कर रहे हैं। ये ठट्ठा करने वाले कौन हैं? जिनको समझ नहीं आती। अमाल की किताब पढ़ के देख लेना। एक मौका पर पौलुस रसूल पर खुदा ज़ाहिर होता है और खुदा बोलता है उससे। क्या करता है? बोलता है। और पौलुस रसूल को तो समझ आ रही है कि ये बात है, मगर दूसरे लोग क्या करते हैं? बादल गरजा। क्या गरजा जी? उन्होंने बादल की गरज नजर आती, ऐसी गरज सुनाई देती जैसे बादल है। लेकिन पौलुस को साफ अल्फाज समझ आते हैं खुदा क्या बोल रहा है उससे। और ये शुरू ही से होता है। आज भी कई लोगों को समझ आती है, कईयों को नहीं आती। तो घबराने की जरूरत नहीं। जिन्होंने समझ नहीं ना होती वो उस ग्रुप में से है जो उस वक्त इकट्ठा कर रहे थे। और आज भी जिनको समझ नहीं आती वो मजाक उड़ाते हैं। रूह कुदस का क्या उड़ाते हैं? मजाक। और मैं आपको बताऊं, अगर हम में से कोई ऐसा बैठा हुआ है जो आज तक रूह की बोली का मजाक उड़ाता रहा है, तो ऐसों के लिए तालीम ये है, यीशु ने कहा था सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं, लेकिन रूह के खिलाफ कोई गुनाह किया जाएगा तो कभी माफ़। इसलिए बड़ा मोहतात होने की ज़रूरत है, बड़ा मोहतात हो के बोलने की ज़रूरत है। लेकिन लोगों को डर भी नहीं लगता, लोग खौफजदा भी नहीं होते। लोग तो रूह से झूठ बोलते हैं। जैसे हनन्याह और सफीरा ने ज़मीन बेची जोश में आकर के खुदा को देंगे, तो जो वाह पैसे नजर आ गए, फिर क्या केड़ा खुदा को घाटा पै चला है, चलो थोड़े दिन। और क्या हुआ? पहले शोहर गया, बीवी गई, दोनों ने तहिया किया हुआ था कि सच नहीं दसना। और हुआ क्या? मौके पर उनकी हलाकत हुई। और पतरस ने कहा कि तुमने खुदा से झूठ बोला। किससे झूठ बोला? मतलब है उस वक्त रूह ऐसा सेंसिटिव होकर आया कि वो जो कोई उससे झूठ बोलता वो हलाक हो जाता। और कलाम में लिखा जब हनन्याह और सफीरा मर गए तो कलीसिया पर खौफ छा गया। खुदा न करे कि ऐसे लोग जो रूह से झूठ बोलते हैं, रूह का ठट्ठा करते हैं, वो कहीं हलाक हो जाए तो फिर ही डर पैदा हो। काश के हम सेंसिटिव मामला को समझे। पाक रूह बड़ा ही हसास है। रूह कुदस बड़ा हसास है। वो इतना हसास है कि बेटे से भी ज़्यादा हसास है।
اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے 100 بار سوچیں، پھر پاک روح کی بات کریں۔ پاک روح کے بارے میں لکھا ہے بعض نے ٹھٹھا کیا، میں پھر کہوں گا یہ کون ہے جنہوں نے سمجھ نہیں آتی، اور ان کے لیے سمجھن والے واسطے نہیں بلکہ ان کے لیے جن کو سمجھ نہیں آئی، پترس اٹھا اور اس نے ایک بڑا سرمن دیا، اور آگے اس سرمن کا ذکر ہے، آغاز دیکھیں اس نے کیسا آغاز کیا، 14ویں آیت سے پڑھیں ذرا۔ لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں ہے، اور کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے۔ کدھر چڑھے ہی پہر دن؟ آج سے 2000 سال پہلے پہر دن چڑھا ہے۔ پہلا پہر صبح 6 بجے سے 9 بجے کا وقت، انہوں نے کیا ابھی تو پہر دن چڑھا ہے، اس بادشاہی کا پہر دن چڑھا ہے، اور یہ تو آغاز ہے، اور میں کہتا ہوں اس وقت اگر صبح کا وقت تھا تو ابھی دن ڈوبنے والا ہے۔ خدا نے جیسے روح ان کو دیا تھا ان پچھلوں کو بھی دینا چاہتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جیسے وہ پہلی برسات ہوئی تھی فصل کے لیے کہ وہ زمین میں سے نکل آئے، ایسے ہی اب آخری برسات فصل کی کٹائی کے لیے ہے، کیونکہ فصل تیار ہو چکی ہے، اور اس آخری بارش کا جو مزہ ہے ہم نے لینا ہے۔ آمین۔ اس آخری بارش میں ہم نے شریک ہونا ہے، اور ویسا ہی تجربہ کرنے کی ضرورت ہے جیسا بالا خانہ ہونا ہے۔ آمین۔ اور اس نے کہا جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے۔ خدا فرماتا ہے، کون فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے۔ بشپ جوید فرماتا ہے، پادری محمود فرماتا ہے، کیوں جی؟ پترس رسول فرماتا ہے، پترس نے خود کہا کہ خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا، اور یہ آخری دن ہم تو کہتے ہیں نا حالے آخری دن آئے نہیں، آج سے 2000 سال پہلے پترس نے کہہ دیا کہ یہ جو ماجرا ہے نا یہ یوئیل کے ساتھ جڑ گیا، یہ پیشن گوئی کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور آخری دن کب سٹارٹ ہوئے؟ اسی وقت جب پہر دن چلا۔ آمین۔ آج سے 2000 سال پہلے آخری دن شروع ہو گئی، نہ صرف کلیسیا پیدا ہوئی بلکہ زمانوں کے آخرت کی طرف ہم بڑھنا شروع ہو گئے، اور آخری وقت کا مددگار کون ہے؟ پاک روح ہے۔ آخری وقت کے زمین پر نمائندہ کون ہے؟ کلیسیا۔ تو آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے، کس کے روح میں سے؟ خدا کہتا ہے میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور جب ڈالوں گا تو تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں کیا کریں گی؟ نبوت کریں گے، تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے تاش کھیلیں گے۔ یہ لکھا ہے تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے۔ اور میں کہتا ہوں جوانوں کے لیے بھی کلام ہے پاک روح کا، بڈھوں کے لیے بھی کلام ہے، تمہارے بیٹے کے لیے بھی کلام ہے پاک روح کا، پیغام ہے پاک روح کا، بیٹیوں کے لیے بھی کلام اور پیغام ہے کس کا جی؟ پاک روح کا۔ جوان رویا دیکھیں گے، بڈھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں پر اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ کیا کریں گی؟ نبوت کریں گی۔ تو یہ روح سب کے لیے، آمین۔ جیسے بیٹا سب کے لیے تھا، میں نے پہلے بھی کہا بیٹا سب کے لیے تھا، جو قبول کرے گا زندگی پائے گا، جو قبول نہیں کرے گا حالات ہو جائے۔ روح سب کے لیے ہے، جڑا لے گا۔ اور پالوس نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہے۔ انہوں نے کہا جنہیں چ بسیا سی، آج ضرورت ہے کہ جنہیں چ نہیں بسیا وہ خالی گیت نہ گانا ادھر کو، بلکہ دعوت دیں کہ پاک روح میرے دل میں آ،
पाक रूह में ज़िंदगी को होल्ड कर, क्योंकि दिल ही सारी चीज़ों से ज़्यादा लाइलाज क्या है, ये लबास है। इस दिल के सारे मामले हैं, ये दिल ही बंदे को ख़राब करता है, और ये दिल ही बंदे को मार देता है जब हार्ट अटैक हो जाता है। ये दिल ही है जो इंसान को इंसान से शैतान बना देता है। इस दिल को अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं तो फिर दाऊद जैसी दुआ करने की ज़रूरत है। उसे दुआ की ज़बूरी कामल में वो कहता है, ऐ खुदा मेरे अंदर मुस्तकीम रूह डाल। कौन सी रूह? और मेरा दिल जो है गोश्तीन कर दे, नरम कर दे, चंगी तरह धो दे, मेरी कर सफाई, मैनू कर दूं पाक साफ, क्योंकि मैं क्या हूँ जी, मैं तो गुनहगार हूँ, मेरे हाथ खून आलूदा हैं। और याद रखें, खून आलूदा हाथों को साफ होने की जरूरत है। जवानों के लिए पैगाम है, जवान भला किस तरह, अभी पिछले यूथ प्रोग्राम में पाकिस्तान ने मैसेज दिया ना, जवान कैसे अपनी राह को साफ करेगा, कैसे जी? खुदा के कलाम पर ध्यान करने से। तो कलाम ये कहता है कि जवान भी रूह लें, बेटे भी रूह लें, बेटियां भी रूह लें, सब के लिए रूह है। और जब ले ले तो करें क्या जी? एक ही मकसद है, यीशु की गवाही। आमीन। यीशु की गवाही देंगे। और कुछ लोग कहते हैं नबूवत क्या है? बोले नबूवत क्या है? बोले बोले मेरे पीछे बोलो, नबूवत क्या है? हाँ, बोल सकते इतना? फिर बोले नबूवत क्या है? एक बार और बोले नबूवत क्या है? अब फिर मेरे पीछे बोले यीशु की गवाही, नबूवत की गवाही। सिंपल। जरा बंदा कहना मेरे को रूह है तो गवाही नहीं देना, उसे अपने रूह को चेक करना होगा कि रूह केड़ी रूह है। और जिसके पास रूह नहीं है और गवाही देना चाहता है, वो पहले रूह ले, फिर यीशु का गवाह बन जाए। आमीन। और याद रखें, दुनिया में बड़ी बिदतें हैं जेडे बगैर रूह दे कलाम सुना देना ना, वो फिर और ही मिशनें पेश करते हैं। उनमें एक बड़ी मिशन है यहोवा विटनेस। कहनी जी पता नहीं अखाड़ा में है तो है, वो क्या कहते हैं, हमें यीशु की गवाही नहीं देनी, हमें यहोवा की गवाही देनी है। लेकिन हुक्म क्या है? तुम इसी शहर में ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले, और जब कुव्वत मिल जाएगी तो तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक। क्या कहा जिसने? मेरे अब्बे के गवाह हो गए कि मेरे। यहोवा कौन है? यहोवा खुदावंद यीशु मसीह का बाप है। और देखो उसने क्यों कहा मेरे गवाह? क्योंकि वो जानता है कि मेरा बाप भी मेरी गवाही देता है। आपको याद होगा जब रूह कबूतर की सूरत में आकर उस पर उतरा है, मत्ती की इंजील 3 बाब में, यूहन्ना से जब बपतिस्मा लेता है, पानी से बाहर आया तो लिखा आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा जिससे मैं। तो देखें यहोवा किसकी गवाही देता है? यीशु की। ऐसे लोगों का दिमाग फिर गया है क्योंकि रूह नहीं है ना उनके पास। जब रूह मिलेगा तो किसकी गवाही देंगे जी? यीशु की। यीशु कौन है? यहोवा नहीं, यीशु यहोवा का बेटा है, क्योंकि उसी यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा कि मेरी दाहिनी तरफ आकर बैठ। उस वक्त तक बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। तो यहोवा खुद यीशु की गवाही देता है। फिर मॉर्मन एक बंदा था, उसकी शक्ल मिलती थी यीशु के साथ। उन्होंने कहा जी वो यीशु नहीं, अब ये यीशु है। और उन्होंने अपनी बाइबल भी अपनी निकाली हुई। ऐसी मिशनों से हमें बचने की जरूरत है, ऐसे अदारों से हमें बचने की जरूरत है। तो एक ही कुव्वत है जो हमें बचाएगी, और वो खुदा का नाम। यीशु ने कहा था जब वो आएगा तो तुम्हें क्या करेगा? आने वाले वक्त की खबरें देगा, और वो वही कहेगा जो मैं उसे कहूँगा। फिर उसने कहा कि आखिरी वक्त में जब लोग तुम्हें अदालतों में खड़े कर देंगे तो उस वक्त भी बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नुमाइंदगी खुदा का पाक रूह करे, अगर आप चाहते हैं कि कलीसिया की नुमाइंदगी आखिरी वक्त में खुदा का पाक रूह करे,
तो फिर आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए और अपने हाथों को ऊपर करके, हालेलुया, हाथों को ऊपर यानी बुलंद करके बोलना शुरू करें। एक ही मकसद दुआ में रखें कि आपको पाक रूह मिल जाए, वो रूह जो यीशु का रूह है, वो रूह जिसे पाक रूह कहा गया है, वो रूह जिसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। कभी वो हवा की सूरत में आता है, कभी वो मसा के तेल में आता है, कभी वो कबूतर की सूरत में आता है, कभी वो पानी के चश्मों की सूरत में आता है, हमारे अंदर से नदियां जारी होने की सूरत में, कभी वो आग की सूरत में आता है। उस रूह को मांगे, मांगे, पुकारे। हो सकता है कि उसकी हवा का झोंका आपको छुए, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में रूह की आग भर जाए। रूह से मामूल होना शुरू करें, पुकारना शुरू करें। जैसे हल्दी पानी के नालों को तरसती है, इस तरह से खुदा की रूह को पुकारे। हालेलुया। दाऊद की तरह पुकारे, मुझे पाक रूह से भर, फिर ही मैं पाक होगा। हालेलुया, 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 होली हालेलुया। लबों को खोल दे, लबों को खोल दे, अपने होठों को खोल दे, आवाजों को बुलंद करे। हालेलुया, ओ शामा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुकारे जी खुदावंद को। बहुत ही संजीदा लम्हा है। खुदावंद आपको पाक रूह देना चाहता है, उसकी मर्जी है कि आपको रूह से भर दे। हालेलुया, होली हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पसंद करें तो एक एक कदम आगे हो जाए, आगे हो जाए, ताकि हम और करीब होकर एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा के रूह को पुकारे। हालेलुया। बुलाए अपनी जिंदगी में, बुलाए उसको। हालेलुया, बुलाए अपनी जिंदगी में, बुलाए, बुलाए
तो मेरी जिंदगी में आओ चमश करो, तो मेरी जिंदगी में आओ चमश करो। हालेलुया, मुझे और ताकि मैं तेरे रूह से अपनी जिंदगी को बड़ी राह पर बना सकूं, कुछ में बढ़ सकूं। यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, आए घुटनों के बल होकर खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में उतारो। हालेलुया। Oh, hallelujah. सब कहेंगे हिकमत से तू कर मुझे हिकमत से तू कर मुझे हिकमत से तू कर मुझे हिकमत से तू कर हिकमत से तू कर
کہ جس کے کان ہو وہ سن لے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے. آئے خداوند سے کہیں کہ خداوند تو میرے کانوں کو کھول دے تاکہ تیری آواز کو سن سکوں اور تیرے بندہ سیموئیل کی طرح کہہ سکوں کہ اے خداوند میں حاضر ہوں. پریز ہاللویا ہاللویا. جب روح ٹھہرتا ہے تو آزادی آ جاتی ہے. پریز ہاللویا. آپ نے روح القدس کے لیے دعا کی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ ایمان رکھو کہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہ تمہیں مل گیا ہے. آؤ اب ایمان سے ہم پاک روح کی زبان کو بولنا شروع کریں. ایمان سے بولنا شروع کریں. اس ایمان سے کہ جو کچھ آپ نے مانگا ہے خدا نے آپ کو دے دیا ہے اور وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا. ایمان سے بولنا شروع کریں. پاک روح کی زبان کو بولنا شروع کریں. ہاللویا. جو قوموں کے لیے نشان ہو. ہاللویا. ویسے بیرے بارا بارا بازندارا بارا کو زبیرے مازندہ بھائی بولو بولو ابیرے بزنداری آسمان بارا 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 بیرے بارا بارا آؤ سب جتنے بول سکتے ہیں بولیں. گرم زبانی بولیں گرم زبانی. ہاللویا. بول ابھی کمی سے زندگی لانا ماما ماما لے بے گانا سے بولو 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 بالا 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 میرے بے زنبا یا ناساما بالا رے بالا بالا بو میرے بالا 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 جب یہ سامارا بالا بولو بولو بالا 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 میرے بے ساما تو بولو بولو بالا 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 مزا بالا زبی شما زنبا رے بالا 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 ابھی لابا زبی گانسا بھی لامبا بالا 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 بے 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 بالا 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 سامیا ساما بالا رے بالا 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 رے بے بے کرنا رے بینتارا بالا مزارا کو زبیا ساکالا منصورو منصر گرم بالا بالا کو بیا بالا بالا رے بے کبیا بالا 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 ایسا سامان بالا بالا ماتو دولو. ہاللویا ہاللویا. میرا شکر ہو خدا, میری تعریف ہو خدا. ہاللویا. اور تم نے خدا مجھ پر رحم کیا اور تم نے خدا اپنے ذہن کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کی باتوں کو اے باپ نہ صرف سمجھ سکو بلکہ اے باپ سمجھی باتوں کو میرے لوگوں تک پہنچا پاؤ. اے باپ دعا کرتا ہو اس کلام کی حفاظت کرنا, اس کلام کی حفاظت کرنا, اس کلام کی حفاظت کرنا. یہ کلام تیرے لوگوں کی زندگی میں پاک روح کی ندیاں بہانے کا وسیلہ بنے. اے باپ اس کلام کے نتیجہ میں روح کی آگ آئے خداوند, پاک روح کی جنبش ہو اور اس سے بداری آئے خدا. گھرانوں کے اندر بداری آئے, خاندانوں کے اندر بداری آئے. اے باپ منت کرتا ہوں تیرے حضور میں اس جماعت کے اندر. اے باپ جتنے کمزور ہیں بیمار ہیں خداوند تو ان کو شفا دے. تیرا پاک روح بدن کو چھو کر شفا دے. اے باپ ہر طرح کی کمزوریاں تیرے نام سے جاتی رہیں, یسوع کے نام سے جاتی رہیں. اے باپ دعا کرتے ہیں پاک روح کی آگ نازل ہو اور اے باپ اس آگ کے وسیلہ سے اے باپ بیماریوں کا زور, بدروحوں کا زور, جادوگریوں کا زور ٹوٹ جائے. ہاللویا. ہم دعا کرتے ہیں خدا وہ جو گھروں میں ہیں ان کو بھی تیرا پاک روح چھوئے اور ان کو شفا مل جائے. معجزہ کر خدا, معجزہ کر, کیونکہ جب تیرا پاک روح آتا ہے تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. ہاللویا. تیری تعریف ہو یسوع کے نام سے. سب بولے آمین 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 آمین. آئیے شکر گزاری کریں. آج ہم نے خدا کی آواز کو, خدا کی کلام کو سنا ہے اور خدا کی خادم نے آپ کے لیے دعا کی ہے. خدا کا شکریہ ادا کریں کہ خدا کے روح نے آپ کو چھو دیا ہے. آئیے سب کاموں کے لیے, باتوں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں اس لیے کہ وہ مجبور ہے. ہاللویا
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 मसीह में बुजुर्ग आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं ऐ खुदावंद कि तूने हमें अपने कलाम से भरा, हमें अपने पाक रूह से भर दिया। अरे खुदावंद तेरी पाक में हमें नाम बनाम छीन लिया। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया। ऐ खुदावंद बरकतों के लिए जो ऐ खुदावंद तूने हमें दे दी है, उन बंधन और जुओं के लिए जो ऐ खुदावंद तूने तोड़ दिए हैं, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ये खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि मसा के सबब से जुआ तोड़ दिया जाएगा। ऐ खुदावंद तूने आज मसा के सबब से हमारे जुए तोड़े हैं, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद तेरे लोग ये कलीसिया तुझ में बढ़ती और तरक्की करती जाए, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु के नाम में सब कहें आमीन। हालेलुया। आइए खुदा बाप और बेटे और कुदूस के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। इसी तरह हम असलम के साथ मिलकर रस्तीश को जारी रखेंगे, गीत गाएंगे और इसके दौरान अपनी हदिया जो है वो आप खुदा के खिदमत